हाँ, तो आप एक किस कर सकते हो उसको। आप कोई फेस कर रहा है, कोई कर रहा है, पर एक्चुअल में
Hello, good morning, everyone. We are just waiting for more participants to join the training, and then session will be started.
हेलो हेलो, हाँ सौरभ, Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है ना? Yes, sir. सौरभ सर, Screen आ रहा है ना? सर ये ऑर्डर का सर ने मैसेज किया है 10 मिनट। Just a minute, just a minute, just a minute. Meenakshi, just a minute. Okay, should we wait for 5 minutes? Okay. दो हो गया खाली दिखता है ना अब देखते हैं करते हो। हेलो आ गया। हेलो Yes, sir. Your voice is coming, sir. हाँ अब शुरू करें, Yes, sir. स्टार्ट कर दीजिए। Sir, शुरू कर दीजिए।
Sir, the shared screen is visible to you, sir? हाँ visible. Okay, sir. क्या? हाँ? Good afternoon, everyone. Welcome to this session of exposure to remote sensing and GIS. We have अरे Dr. रामायणी Arti Verma sir with us, हाँ who तो is the Dean उसको दे दो, College शेयर of कर दे, Agriculture Engineering, टाइप JNU करना है Jodhpur, and Principal Investigator, NAHEP project. Sir, requesting you to please start the session. Okay, thank you, Saurabh. This is a session organized for especially the scientists who are involved in KVKs, and I welcome all of you to participate in this session on behalf of National Agricultural Higher Education Project, which is intended towards increase remote sensing and GIS application in agriculture. And it will be possible only by contribution of everybody in the university as well as in the state. So we are again and again hammering on this aspect that the remote sensing data and GIS platform should be used for different applications in agriculture. I'll just brief about the applications here, because I know that earlier we have learned many things about the basics of remote sensing, basics of GIS. So I'm just going for the applications. Now, few of the applications will be applicable to your center or to your district, to your organization, that may be discussed in detail later on. When you need them, we can arrange trainings for that particular aspect. So I'll go next slide, please. Next slide, please. Saurabh, can you hear me? Hello. Yeah, thank you. Remote sensing technology, why we should use ultimately? I think some of you have already undertaken the trainings from IIRS Dehradun, Indian Institute of Remote Sensing. So for them, it is very easy thing now. But those who have not gone any training, they just see the applications, and if they are intended to use it, we can provide further trainings and further clarifications. Why we should use remote sensing? हम ये बात करें अगर कि रिमोट सेंसिंग क्यों यूज करना चाहिए, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज रिमोट सेंसिंग में है कि इसका जो व्यू है वो सिनॉप्टिक कवरेज होता है। सिनॉप्टिक कवरेज का मतलब है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक इमेज देख सकते हैं।
पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे मध्य प्रदेश स्टेट को भी एक इमेज में देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट सेंसर्स एंड द सैटेलाइट। फिर दूसरा है कि पोटेंशियल फॉर फास्ट, इसमें हम जो काम होता है वो एक सैटेलाइट का डेटा, 2 सैटेलाइट का डेटा लेकर के वी कैन कंप्लीट द सर्वे विद इन फ्यू डेज रादर देन मंथ्स टुगेदर। जैसे क्रॉप का सर्वे करना है, रिसोर्सेज के बारे में देखना है, इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड एरियाज के बारे में देखना है, डिफरेंट क्रॉप क्लस्टर्स को ढूंढना है, तो वो आसान हो जाता है इसमें सिनॉप्टिक व्यू और फास्ट में। Then we have the capability of repetitive coverage to detect the changes. हम समझते हैं सर्वे करने के बाद, जैसे हम अगर क्रॉप सर्वे करते हैं पूरे ब्लॉक का या पूरे डिस्ट्रिक्ट का, कौन सी क्रॉप कौन से खेत में लगी है, तो it takes months together to depict that on the map. The area under different crops is easier because it is gathered by Patwari and our agriculture department and land record office. So we get the data that wheat crop is say 10,000 hectares, but where those 10,000 hectares are lying, that takes time and months together. It is required to survey the field under wheat crop. But in remote sensing, this capability is there. As I said, synoptic view. The second capability is repetitive coverage. हर 21 दिन में वो पूरा एरिया दोबारा कवर होता है. So you can get the situation after 21 days again, and you can get the change detection also. क्या परिवर्तन हुआ क्रॉप में या कौन सी नई क्रॉप आई. तीसरा, लो कास्ट इन्वॉल्वमेंट. इसमें कास्ट बहुत ज्यादा नहीं है. क्यों? कि अब हमारे पास में अनेक सैटेलाइट के डेटा फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है हमको. यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द नेट. उसकी लिस्ट हमने आगे बताई. एक्यूरेसी इसमें हायर होती है, और बट एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द क्लासिफायर. देन यूज ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल, जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है. पहले 4 बैंड्स में, 4 वेव बैंड में डेटा आता था. अब अनेक बैंड्स हैं. मोर देन 100 बैंड्स डेटा इज अवेलेबल. So we can classify the areas accurately and very fast. Next please. इसमें मैं चाहूंगा बीच में किसी को भी कोई पूछना है तो they are very free. No problem. I can interrupt. I can be interrupted in the middle. Areas application, जैसा आपने बताया आपको क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग. हम क्रॉप के इमेज को लेकर के indexes developed and we can forecast what will be the crop production. Say after sowing, we can get at least 4 to 5 times coverage of that area. It can be predicted how much crop will be produced, how much production will be there. Then assessment of crop damage and crop progress. कौन सी कोई disease लगी है, that we can identify, and those diseases can be tackled. What are the rectification measures? That also we can plan. Crop identification, say we want to classify the area under different crops. That means crop, say wheat hai, gram hai, other crops hai. We can categorize the area where are those areas are situated. Then crop acreage estimation. So once you classify the crops, you can find out the area. Next one. एरिया एक्रेज एस्टिमेशन, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं और उसको हम रिपीट करते हैं तो हमें चेंज मिल जाता है. नेक्स्ट पढ़ाएं सौरभ. ये देखो, अगर आप म्यूट खोलोगे तो म्यूट खुल जाएगा. और एप्लीकेशन है. हम क्रॉप, अरे बहुत आगे बढ़ा रही है. अब यील्ड मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी कि हम कौन सी इनपुट दें और किस इनपुट से क्रॉप कैसी हमारी बिहेव करेगी, क्या प्रोडक्शन करेगी, कर सकते हैं. पेस्ट डिजीज का इन्फेस्टेशन अगर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन में के जरिए we can identify what is the soil moisture in the upper 10 to 15 centimeter layer of the soil, and which can be used for
subsequent irrigation or management of the soil moisture. Next one. So we generate the different kind of data, basic data जो हमारे remote sensing से मिलता है, ये इतने सारे मैप हम बना सकते हैं. और मैप का मतलब है कि ये में लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड यूज, लैंड कवर, सॉइल, सरफेस वाटर रिसोर्सेज यानी पॉन्ड्स कहाँ हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर की पोटेंशियल कहाँ वो भी हम देख सकते हैं, खरीफ क्रॉप का मैप, रबी क्रॉप का मैप, समर क्रॉप का मैप, और थ्रू आउट द क्रॉप ईयर क्या क्या क्रॉप्स लगाई जाती हैं, दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड मैप इट. नेक्स्ट वन. इसको जो डेटा हमको चाहिए होता है सैटेलाइट का, बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है पर कहाँ डेटा मिलेगा, वो बहुत कॉस्टली होता है, उसको प्रोसेसिंग करना कॉस्टली होता है. तो उसके लिए हमने ये कुछ चीजें आपको बताने जा रहे हैं. ये मैनेजमेंट यू कैन मैनेज ओनली इफ यू कैन मेजर, ये चीज हमने लिखी हुई है इसमें. सॉइल मैप है, क्रॉप मैप है, अगर आप मेजर कर सकते हैं क्रॉप कौन सी है, किस एज की है, लैंड यूज कितना है, कितने एरिया में है, डिजीज अफेक्टेड एरिया है तो कितना है, वाटर लॉक्ड एरिया है तो कितने एरिया में है और कहाँ पे है, टोपोग्राफी में कितना एलिवेशन है, कंटूर मैप क्या कह रहा है, स्लोप क्या परसेंटेज का है, ड्रेनेज कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है, ये सारी चीजें हम मैप में देख करके देन यू कैन प्लान फॉर द इसके मैनेजमेंट की प्लानिंग हम कर सकते हैं. नेक्स्ट. ये स्पेशल डेटा अवेलेबल थ्रू सैटेलाइट कैन बी कनेक्टेड टू दीज टाइप्स ऑफ मैप्स एंड मे बी यूटिलाइज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यानी कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा एरिया कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है, तो हम जब सुटेबिलिटी देखते हैं तो उसमें सॉइल देखते हैं, वहां पे अवेलेबल वाटर रिसोर्स देखते हैं, वहां के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, और कौन सी क्रॉप सुटेबल होगी इस बेस पे हम बताते हैं. तो जितने हमने पैरामीटर बताए उतने का एक एक मैप बना करके वी कैन इंटीग्रेट दोज मैप्स एंड फाइंड आउट ए क्रॉप सुटेबिलिटी मैप, which crop is suitable on which location, that can be mapped. ऐसे ही soil erodibility, soil fertility, then water available or required or deficit, ये मैप हम लोगों ने बनाए हैं. ऑल ओवर एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट की मैप हमारे पास अवेलेबल भी है, कितना पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस की जानकारी, क्रॉप कंडीशन असेसमेंट, क्रॉप यील्ड असेसमेंट, ये सारे डिसीजन प्रोसेसेस हैं इसमें, और डिजीज अफेक्टेड एरिया, इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्लानिंग, ये सब काम हम इन मैप्स के जरिए आसानी से कर सकते हैं. उनको रिपीटेटिव मोड में कर सकते हैं, उनको एक्यूरेटली कर सकते हैं. जो हमारे ह्यूमन मैनुअल जो हम काम करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइम की बचत हम इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है वो बहुत, और जब ये देखते हैं हम कि पीछे हाँ ओके, ये डाउनलोड कर सकते हैं, डेटा हम फ्री अवेलेबल है इनमें. ये जो सैटेलाइट दिखाए गए हैं IRS P6, P7, IRS 2008, 2010, ये कार्टोसैट के नाम के सैटेलाइट हैं जो कि बहुत हाई रिजोल्यूशन पे 2.5 मीटर 5 मीटर बाय 5 मीटर का कम से कम एरिया उतना भी मैप कर सकते हैं. और ये डेटा 8, 10, 3, 5, 7 ऐसे 2003 से अवेलेबल है हमारे पास में. IRS 2011 का रिसोर्स सेट ये 21 मीटर रिजोल्यूशन पे काम करता है, और इसके डेटा भी हमको 11 से लगातार मिल रहे हैं, 13 से सरल के डेटा मिल रहे हैं. फिर कार्टोसैट की दूसरी सीरीज भी आ गई है जो और इम्प्रूव्ड वर्जन है और एक्यूरेट वर्जन है, हाई रिजोल्यूशन वर्जन है. 19 में लास्ट कार्टोसैट 3 का
डेटा भी बहुत हाई रेजोल्यूशन का अवेलेबल है। अगर हम ये देखें कि इनकी रिपीटिविटी है 21 दिन की, और 94 से जो डेटा आ रहा है, तो 25 साल से लगभग हमारे पास डेटा आ रहा है, और ये डेटा काफी तादाद में है। और इसका हमने जो ऊपर की लाइन में लिखा है, मैपिंग ऑफ अर्थ एवरी 21 डेज, मतलब हर 21 दिन में हमारी पूरी अर्थ की मैपिंग होती है, माने हमारे एरिया की मैपिंग भी हर 21 दिन में होती रहती ही है, हम उसको यूज करें ना करें। तो ये डेटा हमको यूज करना चाहिए, नेशनल रिसोर्स है ये, और इसलिए इसको यूज करके हम काफी मदद ले सकते हैं अपनी प्लानिंग में। इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन पिक्सल अप टू 1 मीटर बाई 1 मीटर, मतलब एक क्यारी में आपके जो एक्सपेरिमेंट डलते हैं, इवन दैट कैन बी वॉच्ड फ्रॉम द कार्टोसैट डेटा। सिनॉप्टिक कवरेज है थ्रू विप्स, जो वाइड फील्ड स्कैनर है सैटेलाइट में, वो पूरे स्टेट की एक पिक्चर देता है, एक पूरी इमेज देता है। तो बड़े वाइडर प्लानिंग के लिए जो वाइड फील्ड स्कैनर यूज कर सकते हैं। मल्टीबैंड डेटा इन विजिबल एंड आईआर रीजन, जो कि इंडेक्सेस निकाल करके हमारी क्रॉप के जो कंडीशन है असेसमेंट का, प्रोडक्टिविटी असेसमेंट का, इसका काम करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड में ये सैटेलाइट्स के नाम दिए हैं जिनका डेटा इंटरनेट पे फ्रीली डाउनलोडेबल है। इसमें सेंटिनल सबसे ज्यादा डेटा देता है, ग्लोबिस है, नासा के डेटा है। इंडियन डेटा जो है वो राइट साइड में है, वो अभी ऑन कास्ट उपलब्ध होता है, और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, जो ये सारा डेटा उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र एजेंसी है जो कि सप्लाई करता है डेटा। और इनकी कास्ट भी काफी रिड्यूस हो गई है। पहले एक इमेज जो है वो 20,000 की होती थी, अब वो शायद 5,000 की आ गई है, और कुछ जो पुरानी इमेजेस हैं वो फ्रीली अवेलेबल कर दी है उन्होंने। तो इसमें हम उनको डेट दे सकते हैं, इस डेट की हमको इमेज चाहिए, इस एरिया की इमेज चाहिए, और कौन से सैटेलाइट की इमेज चाहिए, तो वो आपको ये डेटा उपलब्ध कराते हैं ऑन कास्ट एंड ऑन फ्रीली आल्सो। तो इन सब की इस्तेमाल करते हुए हमको आगे अपना काम, सेंटर का, हमारे प्रोजेक्ट का मैंडेट भी है, वी हैव टू इंक्रीज दिस डेटा यूज। नेक्स्ट, अब आगे जो है वो कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं इसमें कि अभी स्टेटस क्या है इसका सैटेलाइट डेटा यूज का। नेक्स्ट वन, उसमें ये जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है इसका लैंड यूज एंड क्रॉप प्लानिंग में। तो हमने एक बेसिन वाइज जो मैप बनाए थे उसका एक फिगर लगाया हुआ है इसमें, जिसमें अन्य मैप भी बनाए, क्रॉप मैनेजमेंट का, इरिगेशन मैनेजमेंट का, हार्वेस्टिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, ये सारी चीजें उसमें आई जा सकती हैं। ये केवल एग्जांपल दिया है लैंड यूज लैंड कवर का। इसमें लैंड यूज लैंड कवर में कौन से एरिया में क्रॉप होती है, कौन से एरिया में फॉरेस्ट है, कौन सा एरिया वाटर बॉडी के अंतर्गत है, कौन सा वेस्ट लैंड है, इसकी मैपिंग हो जाती है। ये मैप दिखने में आपको स्लाइड में बहुत छोटा दिख रहा होगा, पर ये मैप को जब हम अपने सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और उसको जो फाइल होती है उनकी सेव फाइल, उस फाइल में जब देते हैं, उसको लार्ज करते जाएंगे, तो ये अपने जो छोटे से छोटे एरिया को भी डिटेलिंग उसमें दिखाता है, न पिक्चर दिखाता है, उनकी वैल्यूज भी देता है, उनके एरियाज भी देता है। ऐसी कैपेबिलिटी इसमें होती है। नेक्स्ट वन, ये एग्रीकल्चर क्वांटिटी स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा का मतलब है जो हमें लोकेशन के साथ मिले। 10 हेक्टेयर लैंड मटर की फसल के अंदर है, तो वो लैंड कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे होगा, उसके आसपास कौन सा एरिया होगा, उसके बाद कौन सा एरिया होगा, ये सारी चीजें हम सीरियली मैप कर सकते हैं। ये सिंध बेसिन का लैंड यूज का एक मैप लगाया है, जिसमें बीच में जो हरा दिख रहा है परहैप्स इट इज ए फॉरेस्ट एरिया, और कलर में होगा, और बाकी अन्य अन्य लैंड यूज है, वेटलैंड है, बॉडीज हैं। नेक्स्ट वन, आपको केवल एक ग्लिम्स दिखा रहे हैं हाउ दिस इज वेरी यूजफुल फॉर
उसको देखते हुए आप अपने एरिया का प्लान कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेलिंग जहां भी जितनी जरूरत होगी वी कैन हेल्प देम, वी कैन कम देयर, यू कैन कम हियर। नेक्स्ट वन। ये नियर रियल टाइम एक्विजिशन ऑफ सैटेलाइट डेटा अब पॉसिबल हो गया है कि ऐसा नहीं है कि हम पिछले साल के डेटा पे काम करें। अभी कैपेबिलिटी ये आ गई है कि अभी जो डेटा लिया गया आज सवेरे सैटेलाइट 11 बजे 10 बजे जो डेटा लेता है वो आपको 1 बजे अवेलेबल कराया जा सकता है। तो इतनी कैपेबिलिटी भी है कि वो डेटा आप डायरेक्टली अपने यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इट हैज सम टर्म्स एंड कंडीशंस बट दैट कैन बी डन। टेक्नोलॉजी इज अप टू दैट स्टेज। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कब डेटा आएगा, कब वहां कलेक्ट होगा, कब यहाँ आएगा। हमारी प्रोसेसिंग अगर तैयार हो within this period and we can get the next one। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ 2-3 एग्जांपल हैं कि जिसमें हमने इस रिमोट सेंसिंग को टेक्नोलॉजी को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई किया है। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट वन। 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ कोट किए हैं कि इस डेटा को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कैसे उपयोग करते हैं, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जोनिंग के लिए कैसे उपयोग करते हैं और क्रॉप के लिए कैसे उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड में दिखाएं। ये जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जोनिंग है इसमें हमें मालूम करना है कि कौन कौन से एरिया हैं जो ग्राउंड वाटर के लिए सुटेबल होंगे, जहां ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल अवेलेबल है और हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वहां स्लोप कितना है, वहां ड्रेनेज कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, वहां की जियोलॉजी क्या है, वहां की लिथोलॉजी क्या है और उस एरिया में पानी के रेनफॉल की क्या अमाउंट आता है। उन सब चीजों को देख करके हम ग्राउंड वाटर पोटेंशियल देखते हैं कि वहां क्या होगा। तो इनका सारे पैरामीटर्स का एक एक मैप बनाते हैं और उस मैप को जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक डिसीजन रूल देते हैं उसमें कि यदि जियोलॉजी ये हो, पर्कुलेशन रेट ये वाला हो, रेनफॉल इतनी हो, उसकी जो सॉइल स्लोप इतना हो, सॉइल टाइप इतनी हो, तो उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि ये अच्छी पुअर पोटेंशियल जोन है, गुड है या वेरी गुड पोटेंशियल है जहां वाटर का। तो डिसीजन रूल अप्लाई करके वी जनरेट ए सिंगल मैप जो सेंटर में दिख रहा है आपको, जिसमें हम दिखाते हैं कि कौन से एरिया में अच्छा पोटेंशियल है, कौन से एरिया में खराब पोटेंशियल है। तो अच्छे पोटेंशियल के एरिया में हम ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वहां एक्स्ट्रा इरिगेशन उपलब्ध करा सकते हैं और वहां की प्लानिंग कर सकते हैं कि वो समर क्रॉप भी हो, सेकेंड क्रॉप भी हो, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़े, हायर वाटर यूज की क्रॉप भी ले सकते हैं वहां पे, डिपेंडिंग ऑन दी वेरी गुड ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जोन। नेक्स्ट में दूसरा जो मैप है, दूसरा जो स्लाइड है उसमें इसी विधा को यूज करके 5 मैप बनाए गए सॉइल इरोजन एस्टिमेशन के लिए। उसमें रेनफॉल की इरोडेबिलिटी क्या है वो एक मैप बनता है। फिर टोपोग्राफी क्या है, बहुत स्लोपी एरिया है, कम स्लोपी एरिया है, वहां की क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी क्रॉप इरोजन को रोकती हैं, कौन सी नहीं रोकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट उनको कुछ अंक दिए जाते हैं। और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस क्या लगती है वहां पे, उसका एक अलग मैप बनता है। और सॉइल की इरोजिविटी क्या है उसका एक अलग मैप बनता है। इनके मैप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो उससे आपको बहुत अच्छा, ज्यादा तुम हमें साहब बताओ जाओगे कि नहीं? हम ये खत्म बात। उपलब्ध करा सकते हैं। नहीं, ये सब नहीं है। टीए मिलेगा तो जाओगे कि नहीं, ये क्लियर बताओ। तो हम आगे करें कुछ नहीं, हम अपना बीना व्यवस्था पानी मैडम बनाएंगे। नमस्कार। बीना पानी मैडम नमस्कार। ये पूछ रही हूँ मैं। मैडम बीना पानी मैडम नमस्कार। आवाज आ रही है, अब मैं पहचान गया आवाज से आप। हाँ, बस सीधी बात करो, इधर उधर घुमाना क्या। लगता है इन्होंने मोबाइल दूर रख रखा है। एनीवे इनको म्यूट कर दीजिए भाई, सौरभ जी।
तो ये जो 5 मैप को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक मैप बनता है सॉइल इरोजन का, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ज्यादा इरोजन हो रही है, तो वहां हम क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं, या अदरवाइज जो मैकेनिकल मेजर्स हैं सॉइल इरोजन रोकने के, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं, ग्रेड बंडिंग कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी वहां प्लान कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो है दूसरा वाला, वो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का। अगर पूरे एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाना है तो वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स वहां बनाना होते हैं, या तो वो पर्कुलेशन वाले होंगे, या पानी कलेक्ट करके उसका इरिगेशन करने के लिए होगा, पर उसके लिए हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देखना होती है। इन सब के बेस पे ही हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को वहां पर रिकमेंड करते हैं। उसमें ड्रेनेज डेंसिटी है, स्लोप है, उसका जो लैंड यूज है, अगर लैंड यूज अच्छा है तो वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर खड़े करेंगे। ये वो बैरन लैंड है, सॉइल कौन सी है, उसमें उसके जो टेक्सचर है सॉइल का वो कौन सा है, क्योंकि अगर सॉइल पोरसिटी ज्यादा होगी तो पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा, तो वहां पानी रुकेगा नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग करने से कोई फायदा होगा नहीं, वहां ग्राउंड वाटर चार्ज जरूर बढ़ जाएगा। उसके बाद में उसमें हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप कौन सा है, फिर लीनियमेंट डेंसिटी क्या है। अगर लीनियमेंट डेंसिटी का मतलब है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में क्रैक्स वगैरह होते हैं, को देख करके हम ये तय करते हैं कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे मैप हम बनाते हैं। फिर रेनफॉल कितनी, अगर हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे बना लिए, उसका पानी की सोर्स मालूम नहीं कि रेनफॉल और रन ऑफ कितनी होती है वहां पे, तो उसके भी मैप हम जनरेट करते हैं। और वो मैप जनरेट करने के बाद में इन सारे मैप को हम एक इंटीग्रेट करते हैं। उसमें स्ट्रीम ऑर्डर भी होता है, और उसमें ड्रेनेज डेंसिटी के मैप, सारे मैप को हम जब इंटीग्रेट करने के बाद में एक मैप बनाते हैं, और उस मैप में ये सारी इंफॉर्मेशन उस मैप में इंटीग्रेट होती है। यानी इस इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि उस मैप के किसी बिंदु पर हम अगर क्लिक करते हैं तो उस बिंदु पर वो जो हमने 3 और 3 6 3 9 3 12 मैप की जानकारी एक बिंदु पर टेबल के फॉर्म में हमको दिखती है कि वहां ड्रेनेज डेंसिटी क्या है, वहां स्लोप क्या है, वहां सॉइल कौन सी है। तो हर एक बिंदु पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, वहां इंटीग्रेट हो जाती है। जब हम डिसीजन रूल बनाते हैं तो यही जानकारी आधार वहां सेलेक्ट करते हैं कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कितने साइज का आएगा, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और इस तरह ये जो इंटीग्रेटेड मैप है, इट हेल्प्स अस इन मेकिंग ए डिसीजन फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। और ये बहुत यूजफुल सिद्ध हुआ है, यहाँ नहीं सब जगह, ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड आल्सो, सब जगह ये जो टेक्नोलॉजी है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की, ये काफी तादाद में यूज हुई है, और हम अपने यहाँ भी यूज करते हैं, और सब जगह रिकमेंडेड है ये। नेक्स्ट वन, इस तरह ये 2-3 एग्जाम्पल के साथ में हम बताएं आपको कि इतनी एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिसके बारे में लिस्ट हम पूरी एक्सक्लूसिव नहीं दे सकते, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशन लिस्टेड जरूर हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। आप इससे इतर जाकर के और दूर एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में देखें कि बड़े एरिया बेस पर, नेक्स्ट स्लाइड बनाएं, बड़े एरिया पे जो हम काम करना चाहते हैं उसमें इस तरह के मैप्स की आवश्यकता होगी। लैंड यूज कवर मैप, जैसे हार्टिकल्चर प्लांटेशन का मैप, कहाँ कहाँ पे है हार्टिकल्चर आपके ब्लॉक में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो एक मैपिंग कर सकते हैं। सॉइल मैप अपने पास में उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में होगा तो वो हम इसमें डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। टोपोग्राफी का, इरोजन का, ग्राउंड वाटर मैप, सरफेस वाटर बॉडीज, ड्रेनेज, वाटर लॉक्ड एरिया अगर कहीं आपके क्षेत्र में है तो वो, इरिगेशन इंड्यूस सैलिनिटी अगर कहीं हो रही है तो वो भी हम इससे मैपिंग कर सकते हैं। कमांड एरिया का मैप बना सकते हैं। फिर फॉरेस्ट कैनोपी मैप,
अगर हम फॉरेस्ट को देखना चाहते हैं तो फॉरेस्ट का ही बन सकता है। डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है कहीं, उसको मैप कर सकते हैं। फिर अलग अलग एट्रीब्यूट्स के हम जो एट्रीब्यूट मैप्स बनाते हैं उसमें संख्या दिखा सकते हैं। अगर जानवरों का मैप बनाना है, बफेलो कितनी है, काऊ कितनी है, अलग अलग, तो वो भी जीआईएस बेस पे हम अपने अपने ब्लॉक की जानकारी के बेस पे मशीनें कितनी हैं उसका भी मैप बना सकते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग एरियाज। नेक्स्ट वन। और ये इससे बता दें कि जो इंटीग्रेटेड मैप बनते हैं वो इस तरह से डिसीजन मेकिंग के काम आ सकते हैं। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। आप अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स देखें, उसमें क्या हो सकता है उसकी बात करें, और फिर उसको नरेट करना, ये हमारा काम है कि रिमोट सेंसिंग से हम क्या चीज उसमें कर सकते हैं। एक चीज और बता दें आपको बिफोर एंडिंग द सेशन, दैट रिमोट सेंसिंग कोई जादू नहीं है। रिमोट सेंसिंग एक फुल फ्लैश साइंस है। रिमोट सेंसिंग से हम डेटा लेते हैं। इट इज ए टूल फॉर enhancing the capability of a person in terms of synoptic area, in terms of time saving and in terms of accuracy. और इसमें जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशन यही है कि हम जमीन के नीचे नहीं झांक सकते, लेकिन ऊपर की जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के आधार पर हम नीचे भी कुछ अंदाज जरूर लगा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे मॉडल्स डेवलप हुए हैं। फिर ऐसी जगह जहां पे सैटेलाइट की इमेजेस हमको नहीं मिलती, अगर बादल छाए होते हैं तब नहीं मिलती हैं, या कोई ऐसी कवर है लैंड पर जिसके कारण हम जैसे आपके नेट हाउस शेड हाउस में काम करते हैं उसकी इमेजेस नहीं मिलती, क्योंकि वो ऊपर कवर्ड है। ऊपर से जो देखने वाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन अगर हम कवर करके रखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। इस तरह की इधर से एक आखिरी एक एप्लीकेशन लिखा है हमने, ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग मैप। हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्ट कितनी दूर बनते हैं, उनको करके फैक्ट्री जाना पड़ता है, जैसे शुगर केन का है, जैसे वीट की प्रोसेसिंग के मिल है, तो वो कितनी दूर से कब होना चाहिए ट्रांसपोर्ट उनका, ताकि उनको वेट ना करना पड़े, उनकी जो जो सप्लाई है वो निर्बाध रूप से बनी रहे। ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बना सकते हैं, मार्केटिंग का मैप भी बना सकते हैं। मार्केट कहाँ पे है और प्रोड्यूस कहाँ पे है, तो उसको हम किस तरह बेनिफिट मोड में ला सकते हैं ताकि मिनिमम डिस्टेंस पे अपनी मार्केटिंग जाकर कर सकें। इवन द रेट्स, अब जो रेट्स आ गए हैं और वो जीआईएस बेस पे अवेलेबल हैं, उनको भी देख करके हमें पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी मंडी जाना चाहिए किसान को, और वहां पे किस तरह से वो मैक्सिमाइज कर सकता है अपने प्रॉफिट को, ये बात हम कर सकते हैं। आई थिंक दिस मच आई प्लान टू शेयर। If you have some question and some clarification, I'll be glad to try to answer them. Any question from the audience? अपने आप को अनम्यूट करके और आप बोले, मैं अपने आप को अनम्यूट कर रहा हूं, जरूरत होगी तो फिर से म्यूट कर लूंगा। ठीक है सौरभ? हेलो सर, नमस्कार। मैं छतरपुर से बोल रही हूँ। सर अभी आपने कहा कि हेलो हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। नमस्कार। सर, अभी आपने जैसा बताया है कि मैप अवेलेबल है, तो क्या छतरपुर के लिए मैप अवेलेबल है? छतरपुर के लिए मैप अवेलेबल भी हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा वहां पे। अगर कोई प्लानिंग में आए हैं पहले ये, तो निश्चित रूप से वो प्लान करके मैप अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं हो, देन वी कैन प्लान फॉर मेकिंग दोस मैप्स। इसलिए आप सबको इन्वॉल्व किया गया है कि आप अपनी जरूरत समझे पहले, और उस जरूरत के मुताबिक बताएं कि कौन सा मैप अपन को लगेगा वहां। छतरपुर में ग्राउंड वाटर छतरपुर में मैडम, आपके छतरपुर में डॉक्टर नम्रता जैन भी है ना वहां पे? मरिया में है।
हमें? ये हमारे यहाँ नहीं है जी। ओके ओके, सो आप बताएं आपको क्या जरूरत होगी वहां पे, क्योंकि एप्लीकेशन और सर हम उसको प्लान कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर, सर ग्राउंड वाटर। अच्छा, ग्राउंड वाटर में करना चाहेंगे पोटेंशियल्स? जी जी। देखिए, ग्राउंड जो पोटेंशियल है वो आप इंडिया का अगर कहीं किसी ने बनाया है तो निश्चित मिल जाएगा, वरना एक जो ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश सरकार का, जी दिस रिपोर्ट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी ब्लॉक, और इन्होंने बहुत जी पहले प्लानिंग की हुई है। इंफॉर्मेशन वेबसाइट अवेलेबल है। एक चीज और बता दें हम सबको कि आज के जी वर्तमान युग में इतनी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमें केवल वो सोर्स को खंगालना है, बस उस तक जी पहुंचना है बस। तो ये ग्राउंड वाटर एक साइट है, IWIS, इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई वारिस, IW IWRIS, आई, जी ये साइट है। इस साइट पे जाएंगे तो जी आपके ब्लॉक तक की इंफॉर्मेशन उसमें उपलब्ध है, और आप अगर जी चाहिए तो हम इसको यहाँ से देख करके फिर आपको बता देंगे, है ना? जी सर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई जानकारी में और इजाफा चाहिए? आप लोग सब रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े, GIS से जुड़े। GIS का मतलब है कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब आपके मोबाइल पे भी एक GPS लगा हुआ आपके मोबाइल पे, जो आपकी लोकेशन बताता रहता है। आप कहीं भी खड़े होकर काम करते हैं तो वो आपकी लोकेशन वहीं बता देता है। तो मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप से जहां भी आप फील्ड में जाते हैं, KVK के लोग सब फील्ड में बहुत काम करते हैं, दे आर वेरी बिजी, और जहां भी फील्ड में काम करते हैं अपनी लोकेशन को जरूर ले लिया करें मोबाइल से, और गूगल मैप में जा करके वो क्लिक करेंगे तो लोकेशन भी आ जाती है। उस लोकेशन को जरूर नोट करें अपने फील्ड्स की, और उससे बहुत आसानी होगी आपको मैपिंग करने में, अपनी एरिया की मैपिंग करने में और उसकी प्लानिंग करने में। कुछ अभी मोबाइल एप्स भी आ गए हैं जो कि इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। जैसे अभी MP किसान मित्र करके एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल पे ऐप है, आप डाउनलोड कर लें, MP किसान मित्र, और उसमें गूगल से कनेक्ट किया हुआ है हमने। आप उसके मैप पे जाएंगे तो आपकी लोकेशन वो दिखाएगा। आप उसमें अपने एरिया को नाप भी सकते हैं, डिस्टेंस भी नाप सकते हैं, और उसमें क्रॉप की प्लानिंग फार्मर्स को बताएंगे। इसको तो फार्मर्स भी यूज कर सकते हैं उसको। हम लोग भी चाह रहे हैं कि और भी कोई नए ऐप डेवलप करें किसानों के लिए, किसानों की मदद के लिए। तो इसको भी देखें, और उसमें जहां कोई प्रॉब्लम जा रही है वो बताएं, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ें कि उनको मॉडिफिकेशन किया जाए, उनको और अपडेट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। इस तरह की एप्स की आवश्यकता है, क्योंकि हम हर किसान के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, और वो एंड्रॉयड मोबाइल्स पे ये सब चीजें करते रहते हैं, दूसरे दूसरी चीजें करते हैं, अपने क्षेत्र की चीजों करेंगे, किसानी की बातों को देखेंगे, उसमें क्रॉप की प्लानिंग भी आती है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे ऐप डेवलप हो चुके हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन सब पे भी ध्यान दें और टेक्नोलॉजी के साथ चलें, तो हमें दूसरे की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा हमारा सोचना है। अब आप लोग और बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो। आप में से अगर कोई रिमोट सेंसिंग की ट्रेनिंग कर चुका हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में हमने कराई थी 21 दिन की, शायद प्रजापति जी थे उसमें, और 4 लोगों ने की थी KVK से। नो, इसमें कोई है उपस्थित उसमें से? एक और राकेश प्रजापति थे, प्रमोद जी थे उसमें, 2-3 लोगों के नाम मुझे याद है, बाकी यस सर, बघेल के बघेल जी, हाँ आपने किया हुआ है ना? यस सर, यस सर। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं,
पुशअप करिए थोड़ा कि ये जी चीजें सर, जी उपयोग सर। में आ जाए, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो आप कर रही है वो अभी केवल ऑनलाइन की है आपने। तो जी आप सर, लोग जी जिस सर। दिन कहेंगे उस दिन हम ऑफलाइन यहाँ भी कराएंगे, हम प्रोग्राम बना रहे हैं आपके लिए, ऑफलाइन सर करा सर के उसको आप अप्लाई कर सके, वहां तक पहुंचाना सर है सर। हमको। जी जी, आपका क्या बिल्कुल अनुभव सर। है इसमें बघेल साहब, कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसमें? नहीं बिल्कुल सर, एक्चुअली सर हमने सर डिसीज फोरकास्टिंग के लिए सर एक मॉडल बनाने का सर प्रयास कर रहे थे रीवा में, कि सर हम कि सर डिसीज आने के बाद सर हम किसानों को सर बहुत लाभ नहीं दे पाते। तो सर हम क्लाइमेटिक कंडीशन को सर करके सर कोलेट हम कैसे डिसीज फोरकास्टिंग का एक मॉडल अपने जिले में सर दे सके किसानों के लिए, सर बहुत बेहतर रहेगा फार्मर्स के लिए सर। बहुत बढ़िया है, इस पे तो आपने काम भी शुरू किया है ना मैडम के साथ में? यस सर, इसमें सर काम शुरू कर दिया सर, बस थोड़ा सा उसको सर हमें उसको थोड़ा और कुछ टेक्नोलॉजी सर उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, उसे हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम कर पाए इसको फील्ड कंडीशन में, ये देखना पड़ेगा सर इसमें क्या सर बिल्कुल। रियल टाइम डाटा को सर हम कैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लान बना लीजिए इसको, और उसकी जरूरत जितनी टेक्नोलॉजी की हो वो भी अपन ले लें, एक्सपर्ट की जी जरूरत हो सर, तो एक्सपर्ट बुलाएं, है ना। इसमें अभी सर प्रोजेक्ट में काफी प्रोविजंस हैं, हम उसमें जी काम कर सकते हैं। ठीक है, जी बहुत सर, बढ़िया। क्यों, और थैंक यू सर। कोई कुछ कहना चाहे, कुछ बात करना चाहे तो जिसको ट्रेनिंग लेना हो इसमें, वो ट्रेनिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स की भी मदद है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोजेक्ट है एक प्रकार से कहना चाहिए। ये आप सबको बता दें, क्योंकि केवीके में जो काम कर रहे हैं अभी उस स्तर पे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं आपके पास में, पर यदि आप इस एरिया में काम करना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स भी दिए जा सकते हैं, और उसके मार्फत आप इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी लेवल पे चर्चा हुई है, अभी एक वर्कशॉप हुई थी हमारी, उसमें बात हुई है ये वाली। तो केवल आपको विलिंग करना है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को आगे ला करके उसका उपयोग करना है। हम उसमें आपके पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं, उसमें फाइनेंशियली फिजिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने को वी आर रेडी हियर। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक हमको जबलपुर में मिला हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट फॉर यूज ऑफ स्पेशल डेटा फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे काम कर रहा है। ये जबलपुर में सेंटर है जिसके थ्रू अपन ये सेमिनार भी कर रहे हैं और ये वर्कशॉप भी कर रहे हैं अभी। तो उसके मार्फत आप अपना अपना जो व्यू है, अपनी जो तमन्ना है इस टेक्नोलॉजी में जाने की, उसको बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे सारे केवीकेज में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हो, जितना जितना जरूरी हो और जिसकी आवश्यकता हो उसकी। तो उसमें बेसिक जो ट्रेनिंग है वो हम फिर अभी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, मार्च से शायद शुरू हो जाएंगी ट्रेनिंग्स हमारी, अगर ओपन होता है तो। अभी क्या है, गेस्ट हाउस और हॉस्टल को ओपन नहीं किया है, इसलिए हम ऑफलाइन ट्रेनिंग अभी नहीं कर पा रहे थे, और शायद अब मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो हम उस पर भी जाएंगे। तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट भी है, आग्रह भी है कि इस तरफ बढ़े, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हम पीछे रह जाते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है। ये जब हमने 2000 किया था प्रोजेक्ट रिमोट सेंसिंग पे, तब यहाँ कोई जानता नहीं था, काफी अवेयरनेस है, काफी लोग इसमें आ रहे हैं। करीब करीब 11-12 स्टूडेंट्स की थीसिस इस एस्पेक्ट पर, इसी थीम पर रजिस्टर हुई हैं, और वो आगे इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी अगर कोई ऐसा टॉपिक दें तो किसी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके वहां भी ये काम शुरू कराया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन या कोई बात हो तो जरूर रखें। बाहर से भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं कुछ, उन पर कोई ऐसा प्रश्न हो तो रखें। हमारे पराडकर जी जुड़े हुए हैं, बिना पानी जी जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम भर ले रहा हूँ, बाकी लोग सब अच्छे हैं और सब फॉरवर्ड है। यस
सर मैं गौरव महाजन छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। सर मेरी एक क्वेरी थी, हाँ, जैसे हाँ, आप बोलिए। अपने स्लाइड शो में बता रहे थे कि हम लोग जो हमारे पास पिक्चर्स हैं या जो डाटाज है वो अवेलेबल हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सर जैसे आपको पता है कि हमारा जो ये छिंदवाड़ा प्रोमिनेंट मेज ग्रोइंग एरिया सर, सबसे ज्यादा मेज ग्रोइंग हो गया है अब तो सर, कॉर्न सिटी के नाम से भी जाना चाहता है। तो हम सर इस डाटा को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करके के थोड़ा सा हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर इसके संबंध में अगर हमको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 7 to 10 डेज की मिले तो सर ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी। जैसे सॉइल हाँ, आता है तो एक शीट को आता है, तो सर हम उनको बताना चाहते हैं कि सॉइल के बेसिस पे। तो सर ये थोड़ा सा आप मुझे हेल्प बताइए, कोई मार्गदर्शन दीजिए सर। बहुत बढ़िया। आई एम वेरी ग्लैड टू क्वेश्चन गौरव। इसमें क्या है, हमें एक सॉइल मैप वहां का जनरेट करना होगा, छिंदवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट सॉइल मैप और एक क्रॉप मैप। ये दोनों ही मैप को हम अगर देखेंगे तो आपकी सुटेबिलिटी और काहे पे डिपेंड करती है, सॉइल और वहां की रेनफॉल। सर चीफली क्लाइमेटिक पैरामीटर्स जो चीफली वो तो डिटरमिन करते हैं सर। पर वो क्लाइमेट पैरामीटर तो छिंदवाड़ा के लिए एक से ही होंगे, है ना? जी सर। रेनफॉल भी लगभग एक सी होती है वहाँ। ऐसा वेरिएशन है वहाँ रेनफॉल जी का सर। ब्लॉक में? सर नहीं, वो ले सकते एक्चुअली हैं। छिंदवाड़ा में। जी सर, प्लीज सर। हाँ नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि मेज जी। की एबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं मैनुअली, कि कौन सी सर, खेत में मेज होना चाहिए? तो हम अगर साइंस देखा जाए तो मेज को हम देखते हैं कि उसके लिए जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वो हम साइंटिफिकली रिकमेंड करते हैं सिर्फ फार्मर्स को। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कोई भी फार्मर ये नहीं देखता कि उसकी सॉइल कैसी है, वो तो ये सोचता है कि मेरे साथ आना चाहे उसका खेत जो है। इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फार्मर जरूर नहीं सोचता, पर हम साइंटिफिक में ही जाएंगे। और अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल्स नहीं है तो मेज वहां फेल भी हो सकता है, ये बात भी उतने ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको इनके मैप्स अगर हम डेवलप कर सकते हैं वहां पे, तो आप आए और हम ट्रेनिंग पे आपको बुलाएंगे उसमें, और इस पे काम जरूर कर सकते हैं। गौरव, अगर इसमें कोई स्टूडेंट, आप क्या आजकल बालाघाट में है क्या, छिंदवाड़ा में? सर मैं छिंदवाड़ा में पोस्टेड हूँ सर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा शुरू हो गया है, बट स्टूडेंट्स अभी हमारे पास नहीं है। बट पहले आप वहां हुआ करते थे ना, उसमें गंजवा सौदा में। नहीं सर, पहले मैं रीवा में था, रीवा में पोस्टेड था, तो उसके बाद ये अगर बहुत अच्छा काम है और अगर कोई स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं वहां पे। अभी तो एडमिशन हुए हैं ना इसमें? हाँ सर, डेफिनेटली मैं बात करके स्टूडेंट को लेना चाहूंगा रिसर्च के लिए, तो ये काम सर परस्यू करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको जरूर करिएगा। और यहाँ हम भी रिकमेंड करेंगे हेड्स को। अभी हमारा 23, 24, 25 में यहाँ पे हेड और पीजी स्टूडेंट्स के साथ में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज जो हम प्रोजेक्ट के थ्रू दे रहे हैं वो बताएंगे हम। उसमें हम चाहेंगे आप भी उसमें शामिल हों और अपनी बात भी रखें, और आगे स्टूडेंट्स मिलने की उम्मीद भी रहेगी उसमें। जो स्टूडेंट उसके लिए अलर्ट होगा वहां जाकर के काम करेगा मेज के लिए आपके साथ में। जी सर, जी सर। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कि हम चाह रहे थे कोई एप्लीकेशंस और आगे बने। तो मेज क्रॉपिंग हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, सुटेबिलिटी ऑफ मेज क्रॉप सुटेबिलिटी मैप और मेज क्रॉप छिंदवाड़ा। इस तरह के बना सकते हैं अपन, बहुत अच्छी जानकारी बन सकती है उसमें। थैंक यू सर। और कोई किसी का कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो जरूर कहें। कहने से ही बात आगे बढ़ती है, ये केवल सुनने से नहीं होता। श्रवणम जो है वो पहला काम है, उसके बाद में उसको कहीं आत्मसात करें तो फिर काम शुरू हो जाता है। तो आप में से कोई और कोई क्वेश्चन करना चाहें? और केवीके से और कोई प्रॉब्लम जिसमें हमें बड़े एरिया में इसकी जरूरत पड़ती है? लाइक आपके केवीके का जो एक एप्लीकेशन मुझे ध्यान आता है, और शायद किया भी है कुछ, केवीके में हुआ भी है वो,
गूगल बेस्ड मैप्स आई थिंक सभी केवीके के बने हुए हैं, लेकिन उन गूगल बेस्ड मैप्स में उतनी जानकारी नहीं होती है। उन मैप्स को अगर हम जीआईएस बेस्ड मैप बना लें तो वो मैप हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। अगर गूगल बेस भी नहीं बने हैं तो वो तो जरूर बना लें, गूगल पे जा करके अपने जो गूगल मैप पे, और उनके अपने केवीके का जो एरिया है, वर्किंग एरिया, केवल लोकेशन नहीं, पूरा कंप्लीट एरिया, आपके एफएलडीज कहाँ होती हैं, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं, वो सारा अगर उसमें आ जाए तो बहुत अच्छा एक आउटपुट दिखता है उसमें। तो और कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज शुड वी एंड द सेशन? 12:59. Okay, I think should we end? Yes, sir. I think there is no more questions, sir. Thank you very much, Okay. sir, for this informative session, and thanks all the participants for attending this session. Okay, We are- thank you. मीटिंग लेफ्ट हो जाए।